Moldi Kazmedriyen. साइड में एक इंसान है, उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे प्लीज भगवान के लिए बचा लो। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो, बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੂੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CCS ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ सामने आ गया। हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है। दस दईए कि PMDS ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बौखला उठा है पाकिस्तान। देखिए, ये समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसके तहत जो इंडस बेसिन है, जिसमें कि हमारी टोटल 6 रिवर आती हैं, उसमें से 3 नदियों का पानी जो इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया था और रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का पानी भारत को अलॉट किया गया था। समस्या ये है कि भारत को जो पानी अलॉट किया गया था वो एब्सोल्यूट था, मतलब उसमें ये था पूरे अधिकार भारत के उन पानी पे थे। लेकिन जो पाकिस्तान को पानी अलॉट किया गया था उसमें भारत के कुछ सीमित अधिकार थे। झगड़ा यहां से शुरू होता है कि जब भारत उन सीमित अधिकारों का उपयोग करने चलते हैं, तो शुरू में तो दोनों ही देश डेवलपिंग थे, दोनों कर रहे थे, तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट जैसे जैसे भारत ने ये रियलाइज किया कि हमें अपने जम्मू कश्मीर के लिए और अपने आवाम के लिए अपना डेवलपमेंट करना है, तो जब हमारे डेवलपमेंट ने, हमारी प्रगति ने, जब डेवलपमेंट ने गति पकड़ी, उसके बाद से पाकिस्तान को दिक्कत होने लगी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ CCS ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜਹਿਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਨਾਬ, ਜਹਿਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 2016 दिसंबर में हमने पिटीशन फाइल की थी। जनवरी 2017 में हमने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया इस मैटर को तुरंत सुना जाए। चीफ जस्टिस ने 1.5 महीने भर बाद की डेट दी थी और जब ये मैटर सुना गया उस समय हमने कोर्ट को बहुत क्लियरली डिस्क्लोज किया था। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन ही नहीं किया है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर कंफर्म नहीं किया, साइन नहीं किया, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। हमने कोर्ट से कहा ये जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनल साइन किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस समय और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने साइन किया है और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में साइन किया क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका तीसरा पक्ष बना था। तो इनफैक्ट ये पिटीशन, ये जो एग्रीमेंट था, ये वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, जिसमें इन दोनों ने साइन किए थे, नेहरू ने और पाकिस्तान के पीएम ने। तो ये तो लीगल था ही नहीं, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्री कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज कंफर्म बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने इसे कभी कंफर्म नहीं किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, इसलिए ये एग्रीमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। और मजे की बात है, इस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास जो नदी में जल था उसका 80% पानी हम लोगों ने पाकिस्तान में, इन लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया था, नेहरू ने। और नेहरू ने ये किया था केवल अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए, कोई लीगल वैलिडिटी के लिए नहीं किया था, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने ये किया था। उसका परिणाम पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ा 1960 से आज तक। यहाँ तक कि जब हमारे देश में अकाल पड़ा उस समय देश पानी को तरस गया, फिर भी इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा गया और 5 नदियों का 3 नदियों का मेन 80% पानी पंजाब पाकिस्तान को दिया गया कंटिन्यू, और आज भी दिया जाता रहा। और 2017 में जब हमने इसको चैलेंज किया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जो जज बैठे हुए थे उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने से इसलिए मना कर दिया, नहीं ये तो 2060 में साइन किया हुआ है। अरे 2060 में कोई पिटीशन इलीगली साइन है तो आपको देखनी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है उसकी। ये एग्रीमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सिंस वेरी फर्स्ट डे ऑफ द बिगनिंग। अगर नेहरू पर्सनल अपना घर किसी को देता है तो दे, लेकिन राष्ट्र को देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति देने का उनको कोई राइट नहीं था, राष्ट्रीय जल को देने का कोई राइट नहीं बनता था। ये इस देश के लोगों की जमीन थी, इस देश के लोगों का पानी था जो जबरदस्ती पाकिस्तान को दिया गया, वो भी 80% पानी। इस देश में कई बार सूखा पड़ा लेकिन वो पानी इस देश को कभी नहीं मिला। 2017 में भी पिटीशन के बावजूद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान में जो हैं, इन्होंने भी उस समय इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, शांत रहे। आज इस बात की खुशी है, कम से कम इन्होंने पहली बार तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए कहा। अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो हमारे देश को में जो समृद्धि आएगी, जो पानी आएगा, उससे जो फसलें बनेंगी, जो एग्रीकल्चर फील्ड बढ़ेगा, जिस तरह से इस देश की समृद्धि बढ़ेगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है जो एग्रीमेंट 2017 में कैंसिल होना था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भी संज्ञान नहीं लिया। इससे बड़ी दुख वाली बात और क्या हो सकती है। तो उन्होंने तरह तरह के ट्रीटी में उनको अधिकार है कि वो हमारे प्रोजेक्ट जो भी हैं बन रहे हैं, हमें उनको सूचना देनी होती है कि जब हम उसको बनाने चलते हैं। पाकिस्तान उसमें अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है अपने, और उसके ऊपर दोनों कमिश्नर मिलजुल के फैसला करते हैं। अगर दोनों कमिश्नर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो सरकार के स्तर पे जाती है बात, जहां पे कि दोनों सचिव मिलके बात कर सकते हैं। और अगर वहां भी बात नहीं होती है
तो फिर तीसरी पार्टी की तरफ जाते हैं, जो कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हो सकता है या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो सकता है। तो पिछले 1-2 दशक से एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हमारे कोई भी प्रोजेक्ट हों या छोटे हों या बड़े हों, वो सारे प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लगाने शुरू कर दिए और उनका मंतव्य ये रहता था हमेशा कि इस प्रोजेक्ट को किसी तरह से रोका जा सके। तो जब इस ट्रीटी को एक राजनीतिक हथियार के तौर पे जब इस्तेमाल किया जाने लगा तो समस्या शुरू हो गई। तो इंडिया बहुत दिनों से हम लोगों को ये लगने लगा था कि इस ट्रीटी का जो उपयोग था, जो जिस वजह से ये की गई थी, वो वजह हो नहीं रही है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों के लिए किया जाने लगा है। तो और उसके बाद फिर भी अगर आप देखें कि कोई भी जो पानी से संबंधित ट्रीटी होती है वो 2 देशों के बीच में होती है, तो जो ऊपर का देश होता है जहां से पानी आ रहा होता है उसको सिर्फ खोना होता है, उसके पास कुछ रहता नहीं है। अल्टीमेटली जो भी है उसको नुकसान ही होता है। तो अगर एक ट्रीटी इतने सालों से सक्सेसफुल थी, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि भारत एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार देश होने के नाते अपना काम, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है ये आप भी जानते हैं। तो हम लोगों को, सरकार को रादर ये लगने लगा कि अब ये बहुत हो चुका है, अब ये नहीं चल पाएगा कि आप एक तरफ हमारे नागरिकों को मारें, एक तरफ आप खून खराबा करें और दूसरी तरफ हम जो है आपको भाईचारे की भावना से हम सब कुछ एक समझौते को निभाएं। तो इसलिए ये काफी पहले से चल रहा था और ये एक फ्लैश पॉइंट था जिसके ऊपर ट्रीटी को अभी फिलहाल सस्पेंड किया गया है। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ स्वागत कर रहा है। देखिए, जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई, उसका जवाब तो मिलना है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम रोकेंगे, उसको कैंसिल करेंगे और जिसके चलते पाकिस्तान को अब इसका असर देखेगा, क्योंकि पाकिस्तान का लगभग 70% जो पानी का मामला है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे डिपेंडेंट है। तो जब ये सब होगा तो वहाँ के लोगों को समझ में आएगा कि उनकी सरकार किस प्रकार की हरकतें, कारियाना हरकतें करती है। जिस तरह ये संधि पाकिस्तान ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਿਸ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ नहीं ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਾਕਿस्तानी ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ। गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान ने मुझे मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे इल्ज़ाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। जिमें इस तरह के फैसले सामने आ रहे ने, हुण एक वड्डा सवाल बनया होया है कि इस तो बाद पाकिस्तान का की अगला कदम होवेगा, क्योंकि इस फैसले के उत्ते उन्हां दे वल्लों ये भी सवाल चुक्या गया कि फैसला लीगली गलत है, कानून के खिलाफ है ते जदों वो समझौता होया सी उस दे खिलाफ है। लगातार सवाल जिहड़े ने चुके जा रहे ने, पर दूजे पासे पीएम मोदी ने भी सीधे तौर के उत्ते कह दिता है कि सानू अतवादी चाहिए ने, भावें किसी भी कोने चों लभने पै जाण। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ABP ਸਾਂਝਾ।